اب سارے دل تھام کے بیٹھو، سچی چاہ کی باری آئی، جنت کی یعنی خیبر پختونخوا کی باری آئی۔ یہ خطہ مہمان نوازوں اور دلیروں کی بستی ہے، یعنی شیروں کی بستی ہے۔ اس خطے میں ملے گی کھیتی باڑی اور زرخیز زمین، اور پسینے میں ڈوبی شفاف جبین۔ کچھ بابا رحمان کے مصرے اور خوشحال خٹک کی نظمیں، کچھ تاریخ کے کھلے دریچے، کچھ ماضی کی انمٹ رسمیں۔ قصہ خوانی سے ملتے ہیں تیکھے کھانے، جن سے سیکھے ہر پکوان میں گرم مسالوں کے افسانے۔ رنگوں اور سروں کی سنگت، پیو مالائی لگتی ہے کیلاش کی رنگت۔ بہت پرانے ہیں چترال کے محل اور ان کے گہرے سائے۔ باغوں میں قدرت نے کیسے رنگ کھلائے۔ خوابوں جیسی وادی میں شندور کا میلہ، جس کی بازی ہر البیلا کھل کر اور جی جان سے کھیلا۔ حسن کے ہے شاہکار سواد اور مالم جبا، برف کی شالیں اوڑے ہیں کوثار نرالے، پاک سفید جبینوں والے۔ دور کہیں کالام کے سبزہ زار اور کلیاں جیسے کوہ کاف کی گلیاں۔ ایک طرف ناران کی جنت، ایک طرف کاغان کی جنت، بیچ میں پریوں والی جھیلیں۔ جو لب ان سے پانی پی لیں، جنت کے کچھ لمحے جی لیں۔ لولو پت سے جھیل کا ٹھنڈا میٹھا پانی، جس کی سبز مٹھاس پیئیں سب اور جیئیں سب۔ جیتے جیتے گائیں نغمے، پشتو اور ہندکوں کے کھٹے میٹھے لہجے۔ خٹک کا رقص اور اس کے پھیرے، اتر کی تال کے مست جھکورے، بابو سر کا خوشبو سے بھرپور یہ جادو، جادو جو سر چڑھ کر بولے۔ درائے خیبر اس بستی میں بستے ہر جانان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت، ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت۔ ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت پر۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے؟ اسی لیے اب ہمیں پہلے سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ رش والی جگہوں پر سب کو نو ماسک نو سروس کے اصول پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ جن جن شہروں میں احتیاطی تدابیر کے لیے ہدایات جاری کیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ شادی ہالز کے بجائے اپنی تقریبات کھلے گراؤنڈ میں کریں۔ آئیے ہم سب مل کر حکومت پاکستان کی جاری کی گئی ہدایت پر عمل کریں اور کورونا کو شکست دیں۔ اب احتیاط اور بھی زیادہ، 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 اب احتیاط اور بھی زیادہ۔ بلتستان میں ہونے والے انتخابات پر ایک نظر۔ کل ووٹرز کی تعداد 7,45,361، مرد ووٹرز کی تعداد 4,05,363، خواتین ووٹرز کی تعداد 3,39,998، کل انتخابی حلقے 24، کل نشستیں 33، مخصوص نشستیں 9۔ اب بات کرتے ہیں ضلعی لحاظ سے حلقہ بندی اور ووٹس کی۔ ضلع نگر، کل ووٹ 37,172، مرد ووٹر 20,491، خواتین ووٹر 16,681۔ ضلع نگر کے 2 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع غزر، کل ووٹرز کی تعداد 1,15,314، 62,714 مرد جبکہ 52,600 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع خضر کے بھی 3 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع ہنزا، کل ووٹرز کی تعداد 43,603، 22,328 مرد ووٹرز جبکہ 21,275 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع ہنزا کا 1 انتخابی حلقہ ہے۔ ضلع دیامر، کل ووٹرز کی تعداد 1,19,452، خواتین ووٹرز 54,334 جبکہ 65,118 مرد ووٹرز ہیں۔ ضلع دیامر کے 4 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع گلگت، کل ووٹرز کی تعداد 1,18,459، 65,449 مرد ووٹرز جبکہ 53,010 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع گلگت کے 3 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع کھرمن، کل ووٹرز کی تعداد 35,620، 19,270 مرد ووٹر جبکہ 16,343 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع سکردو، کل ووٹرز کی تعداد 98,570، 53,999 مرد ووٹرز، 44,571 خواتین ووٹرز۔ ضلع سکردو کے 4 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع شگر، کل ووٹرز کی تعداد 37,957، 20,511 مرد ووٹر جبکہ 17,446 خواتین ووٹر۔ ضلع استور، کل ووٹرز کی تعداد 62,401، 34,063 مرد ووٹر جبکہ 28,338 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع استور کے 2 انتخابی حلقے ہیں۔ ضلع رانچے، کل ووٹرز کی تعداد 76,813، 41,413 مرد ووٹر جبکہ 35,400 خواتین ووٹرز ہیں۔ ضلع گانچے کے 3 انتخابی حلقے ہیں۔ فوری خبر ہو رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ
पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास जहाँ बहुत से प्यार करने वाले अच्छे लोग होते हैं, वहीं कुछ अच्छे नजर आने वाले बुरे लोग भी होते हैं, जिन्हें पहचान कर न सिर्फ आपको इनसे बचना है, बल्कि अपने वालिदैन को भी इनके बारे में जरूर बताना है। प्यारे बच्चों, कुछ अहम बातों को जहन में रखकर और इन पर अमल करके आप इन बुरे लोगों से महफूज रह सकते हैं। याद रखें, आपके जिस्म के मखसूस हिस्सों को छूने का हक किसी को भी नहीं है। आपके वालिदैन आपको नहलाने या अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। किसी बीमारी की सूरत में डॉक्टर भी आपके वालिदैन की मौजूदगी में आपका मुआयना कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको छूने की कोशिश करे तो फौरन अपने वालिदैन को बताएं। अपने वालिदैन से कभी कुछ मत छुपाएं, न उनसे डरें न शर्माएं। अगर कोई बड़ा आपको अपने वालिदैन से कुछ छुपाने को कहे तो उसकी बात कभी न माने। याद रखें, जो ठीक नहीं लग रहा वो ठीक नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा वो यकीनन बुरा है। याद रखें, आपके वालिदैन ही आपके बेहतरीन दोस्त हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और जीबी इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेजबान अली जन्नत और मेरे साथ नाहिद चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक नाहिद बिला किसी तातुल के और बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि आज चूंकि छुट्टी है, इतवार का रोज है और सुबह का वक्त है और इसके साथ साथ सर्दी भी खासी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वोटर्स खासे पुरजोश हैं और वोटर्स का रुझान कैसा है यकीनन इस बारे में भी हम जानेंगे। और अगर बात कर ली जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें यहाँ पर मुतहर्रिक हैं और इन जमातों के कायदीन यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले इंतखाबी मुहिम को लेकर उन्होंने वोटर्स को अपनी जानिब कायल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की हैं। और नाहिद, अगर देखा जाए, गिलगित की बात की जाए, हुंजा की बात की जाए, स्कर्दू की बात की जाए, जहां नजर दौड़ाई जाए एक ही सवाल है कि गिलगित बल्तिस्तान में अगली हुकूमत किसकी होगी। और इस सवाल का जवाब आज हमें मिल जाएगा, क्योंकि वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे कि अगली हुकूमत किसकी होगी। बिल्कुल सही। और एक रिवायती तौर पर थोड़ा सा एक कल्चर भी है गिलगित बल्तिस्तान में कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो मरकज में हुकूमत होगी, अगर उनको हम वोट देंगे तो हमारे काम ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएंगे। ये कल्चर चला आता रहा है। 2010 से 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही वहां पर, 2015 से 2020 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। लेकिन इस मरतबा हमने देखा कि जो इंतखाबी मुहिम है वो बहुत जोरों शोर से चलाई गई है। इससे पहले अपोजिशन वहां पर मौजूद इस तरह से नहीं होती थी जिस तरह से इस मरतबा 24 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर गए, मरियम नवाज साहबा मौजूद रही। लेकिन जो सबसे अच्छा काम हुआ है इस मरतबा और जो सबसे बड़ा स्टेप है वो ये है कि वजीर आजम इमरान खान साहब जब वहां पर गए तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे का दर्जा दिया है। ये एक बहुत
बड़ी पेशरफ्त है और इस हवाले से बाकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आएंगी और टेक्निकली किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा वो भी बताएंगे। लेकिन ये एक बहुत अहम खबर है और बहुत बड़ी खबर है गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए कि उनकी महरूमियों का अजाला इस तरह से हो पाएगा। थोड़ी सी और तफसीलात मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि आज का जो इलेक्शन होने जा रहा है ये 23 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है। 1161 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए गए हैं। 418 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 311 को हसास करार दिया गया है। इसके अलावा खवातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है। टोटल जो वोटर है वो तकरीबन 7 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस मरतबा वोट कास्ट करेंगे। 3.5 लाख से ज्यादा खवातीन हैं, बाकी इसमें मर्द होंगे और तकरीबन 1.25 लाख लोग ऐसे होंगे जो पहली मरतबा वोट कास्ट करने जा रहे हैं। यानी ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि 1.25 लाख लोग इसमें और ऐड हो गए हैं। मौसम की भी सख्ती है वहां पर, लेकिन इसके बावजूद वोटर्स तो बाहर निकले ही निकले हैं। हमारे जो सहाफी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और इतनी सर्दी में सारा जो काम है वहां पर कर रहे हैं। इस वक्त कुछ ही देर में हमें मजीद लोग ज्वाइन करेंगे जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। हमारे कलीग्स वहाँ पर मौजूद हैं और 8 बजे से 5 बजे तक बिला तवक्कुफ ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वहाँ लोग सर्दी के बावजूद मौजूद हैं। 8 बजे से पहले ही वहाँ पर लोग बाहर निकल आए थे। और खासतौर पर अगर हम कोविड की बात करें तो कोरोना SOPs को बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखा जाएगा, उसको मद्देनजर रखा जाएगा। ये अब जो वहाँ की जिले इंतजामिया है उनसे बात होगी या हमारे जो वहाँ पर नुमाइंदे हैं वो हमें बता पाएंगे कि असल सिचुएशन वहां पर क्या है। लेकिन एक बहुत अहम चीज अली जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कल जब DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा ख्याल है कि हम दोबारा इसके हवाले से बात करते हैं। नादिया मिर्जा इस वक्त हमारी कलीग हैं, वो हमें गिलगित से ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा मौसम है, कैसी सर्दी है, क्या देख रही हैं आप? मैं तो इस वक्त जो है वो सारे येलो ट्रीज देख रही हूँ बिकॉज दिस इज ऑटम। और पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी था, लेकिन आज तो बल्कि रात से काफी क्लाउडी है, थोड़ी बहुत बारिश भी है, इस वजह से यहाँ पे सर्दी भी बढ़ गई है। ठीक है, अभी सियासी गहमा गहमी बता दीजिए और वोटर्स का बताएं कि कितनी बड़ी तादाद में आपको नजर आ रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ पर? अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ जो करीबी पोलिंग स्टेशन हैं उनका मैंने सुबह ही उठ के विजिट किया था, तो क्योंकि मुझे रात से ही आइडिया था कि जो हमारे यहाँ नॉर्मली जनरल इलेक्शन में वोटिंग होती है थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड है। यहाँ पे लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। यहाँ पे वो वाला नहीं है कि 11-12 बजे उठेंगे तो फिर वोट डालने जाएंगे। तो यहाँ पर सुबह से ही गहमा गहमी भी है। चूंकि इस दफा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को काफी हाइप भी मिली है, तमाम ही पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आए हैं फैकल्टी जमातों के, तो काफी बड़ी तादाद में वोटर्स को घर से निकालने में कामयाब भी हुए। और इस दफा गिलगित बल्तिस्तान का वोटर खुद भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है। एक बाकायदा इंतखाबात की जो मुहिम होती है, जो इलेक्शन कैंपेन होती है, तो पूरा माहौल वो बना हुआ है। आप बाहर निकले आपको वही रैलीज वही उसी तरह से नारेबाजी, उसी तरह से जोशो खरोश पाया जाता है। तो उम्मीद है कि कंपैरेटिवली इस दफा वोटर ज्यादा बाहर निकलेगा और टर्नआउट पिछले इलेक्शन से ज्यादा बेहतर भी रहेगा। टर्नआउट ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि सर्दी बढ़ गई है। सर्दी का टर्नआउट पर क्या असर होगा, इस हवाले से आप बात कर रही हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि कोरोना SOPs को लेकर किस तरह से हिफाजती इंतजाम वहां पर किए गए हैं, जो पोलिंग अमला है उसकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और वोटर्स वोट डालने के लिए आएंगे, SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात, एक जो डेवलपमेंट है जो हिस्टोरिकल भी है वो ये है कि इस दफा कल हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंटरव्यू भी किया था, उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि हमने आर्मी को, फौज को इन्वॉल्व नहीं किया है तमाम इलेक्टोरल प्रोसेस में। यहाँ पे लोकल पुलिस है, वो है, दीगर जो चारों सूबों से पुलिस बुलाई गई है तो वो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व है। ठीक है, एज फार एज द SOPs आर कंसर्न, उन्होंने कहा कि हमने अपने अमले को मेक श्योर किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, सैनिटाइजर भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, मास्क भी किए हैं। लेकिन अमूमी तौर पे आपको पता है कि एक रवैया हमारे यहाँ जो अवाम में पाया जाता है कि कोरोना कुछ नहीं है और कुछ नहीं होता, तो मास्क लगाने से पता नहीं क्यों थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। ऑफिशियली कहा गया है, जगह जगह मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पे वैसे भी लिटरेसी रेट काफी हाई है, उनजा में 98% है, गिलगित में भी बहुत ज्यादा है। जगह जगह लिखा होता है नो मास्क नो सर्विस।
हाथ लगाएं, लेकिन थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन ऑफिशियल लेवल पर हम देख रहे हैं कि SOPs को फॉलो करने के लिए कम से कम इंस्ट्रक्शंस भरपूर तरीके से जारी की गई हैं। ठीक है नादिया, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से तो ऑब्वियसली जो इक़दाम किए गए हैं उनके हवाले से भी हम बात करते रहेंगे। अभी आप मुख्तलिफ हलकों का आपने दौरा किया है, बहुत सारे लोगों से आपकी बात भी हुई है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर ऑब्जर्व की होंगी। अबूरी सूबे के हवाले से गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उस हवाले से लोगों में किस किस्म के सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, किस तरह से वो इसको देख रहे हैं कि ये जो फैसला किया गया है कितना मुआविन साबित होगा उनके लिए? देखिए नाहिद, ऐसा है कि जो अबूरी सूबे का यहाँ का जो मुतालबा है इसमें कोई शक नहीं है कि वो उनका देरी ना हो सकता है। और जिस तरह से इलाके पाकिस्तान हुआ, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ मर्जर किया, वॉलंटरीली किया, इंडिया से निकले, सब कुछ हुआ, बार भगाया यहाँ से। मगर अब इशू ये है कि मैंने जितने लोगों से यहाँ पे बातचीत की है, जितने लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है, मैं जाके बहुत खवातीन से रोड साइड ये वो उनके घर, अब जो बुनियादी मसाइल है ना उन्होंने उसको थोड़ा सा उसको पीछे कर दिया है। उनके बुनियादी मसले मसाइल आगे आ गए। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, आप सूबा बना दें, हम ये चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मसाइल हल करें। आप सोचें कि यहाँ इश्यूज है, साफ मतलब पानी की फरावानी है, लेकिन उसके बावजूद घरों में पीने का साफ पानी मुहैया नहीं। यहाँ पे एजुकेशन के मसाइल है, यहाँ पे हेल्थ के मसाइल है, यहाँ पे लाइट नहीं आती, बिजली का ऐसा हाल है कि 22 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं होती, यहाँ पे गैस नहीं होती, एजुकेशन के मसले, बेरोजगारी इंतहा से ज्यादा है, डेवलपमेंट नहीं है। तो वो जो फंडामेंटल की जो राइट्स है या उनकी जो जरूरियात है, नीड्स है, वो ज्यादा हावी हो गई हैं। ऑल्दो कि डेफिनेटली बहुत मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान के लिए जान निछावर करने वाले लोग हैं, कहते हैं कि उनकी हक तलफी हुई है, नाराज भी हैं, उनकी शिकायत भी है, उनका शिकवा भी है, गम और गुस्सा भी है कि जी पाकिस्तान ने हमें उस तरह से ओन नहीं किया जिस तरह से हमने आगे बढ़कर पाकिस्तान के लेकिन इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मोहब्बत जो है वो पाई जाती है उन लोगों में। नादिया, आपने कहा कि बहुत बेरोजगारी है वहाँ पर, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुई है, बहुत सारे मसाइल है लोगों के। अभी तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और इस हवाले से बहुत इकदाम भी किए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, आप तो बहुत आपने विजिट किया है, घूमी है, देखा है, तो क्या आप इसमें फेट देखती हैं कि अगर फ्यूचर में टूरिज्म पे काम किया जाए तो उससे फायदा होगा, यहाँ के मकामी लोगों को से वो काफी फायदा उठा सकते हैं, रोजगार मिलेगा, दीगर उनका मौके जो है वो फराहम किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही आप कह रही है, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो यहाँ के लोकल्स को फैसिलिटेट कर सकती है। बाबू सर टॉप का यहाँ पर है, क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा मसला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आपके रोड्स बने हुए हो और रोड 12 महीने खोले रहे, यहाँ पे टूरिस्ट आना चाहते हैं, आते भी हैं, मगर इशू वही आ जाता है एक्सेसिबिलिटी का। अगर बाबू सर टॉप जो है वो 8 महीने बंद रहता है तो यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यही वजह है कि अभी PTI की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी हम इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में उन्होंने कहा कि जी बाबू सर टॉप पे टनल बना रहे ताकि ये 12 महीने खुली रहे। उसको यहाँ के लोगों ने बड़ा वेलकम किया है। अब मसला यहाँ है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कुछ माह के लिए अगर टूरिज्म यहाँ पे होता है, और वो इस वक्त शुरू ही हुआ था, तो आपको पता है कोविड-19 की वजह से उसमें इस साल इतना ज्यादा हमने नहीं देखा कि वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। बट अगेन यू आर वेरी राइट, अगर ये टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रॉपरली डेवलप करके और उनको फैसिलिटेट करके एक्सेसिबिलिटी को मेक श्योर करके इसी को डेवलप करते हैं तो यहाँ के लोगों को लोकल सतह पे रोजगार मिलेगा, उनको यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं होगी। सही। नादिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम इससे पहले इंतखाबी कैंपेन की बात करें तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पर मुतहर्रिक रहे, उन्होंने कारकुनान को चार्ज किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत है और ऐसे में एक तासुर पाया जाता है, एक रुझान है, गिलगित में इंतखाबात हों या कश्मीर में इंतखाबात हों, रुझान यही होता है कि सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है उनको एडवांटेज ज्यादा हासिल होता है। तो ऐसे में आप क्या देखती हैं, एक ये जो तासुर है, ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस लिए एक चैलेंज है। अगर तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस सोच से है कि विफाक में जिसकी हुकूमत है वही हुकूमत बनाएगी। इस सोच का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से कर रही है, किस तरह से करेगी?
देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो एक इम्प्रेशन है कि जिसकी वफाक हुकूमत होती है उसी का रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हो चाहे वो कश्मीर की हुकूमत हो। उसकी वजह भी यही है कि यहाँ के लोगों का कहना ये है कि अगर हम वफाक के अगेंस्ट जाके किसी पार्टी को वोट देंगे तो हमारे मसले मसाइल हल उस MNA या MPA बनने का उस आदमी को फायदा क्या होगा कि अगर आपको सपोर्ट नहीं होगी, वफाक से आपको फंड्स नहीं मिलेंगे, आपके मसले मसाइल हल नहीं होंगे। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि PMLN हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अगर वो एक तो वो एक दूसरे पे नहीं कर रहे थे, ऑल्दो के इलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होने चाहिए। 5 साल PMLN ने कंप्लीट किए तो PP को बोलना चाहिए था कि 5 साल में PMLN की कारकर्दगी क्या रही, लेकिन वो चूंकि आपको पता है कि एक PDM के प्लेटफॉर्म से एक दूसरे के साथ करते हैं तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। दोनों जमातों का जो भरपूर एक तो ये करेंगे और जो दूसरा कन्विंसिंग जो इनका स्लोगन है वो ये है कि जी आप हमें वोट दें, ये हुकूमत तो जा रही है। तो उनका सारा जोर ये उनको कन्विंस करने में या बावर कराने में लग जाता है कि ये हुकूमत चली जाएगी, वफाक में हम होंगे और फिर वो हम ही होंगे जो आपके काम कर सकेंगे। तो ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग वफाक की तरफ देखते हैं, उनकी अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सूबा नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि जो वफाक में होगी वही हमारी मदद को आ सकते हैं, वही हमारे काम करा सकते हैं, दीगर पार्टीज नहीं करा सकती। और इसीलिए PTI की ऑल्दो की तमाम जमातों ने, खासकर पीपल्स पार्टी ने बहुत यहाँ पे कैंपेन की है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज तक यहाँ पर है कि हम इलेक्शन करा के जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हल्कों में PTI का जो जिसको कहना चाहिए कि जो वेट है लोगों के वोट्स का वो PTI के पलड़े में है इस वक्त। ठीक है नादिया, मैं एक जानना चाहता हूँ माजरत से, आपने पीपल्स पार्टी की बात की, मैं नून लीग की क़यादत की बात करना चाहूंगा कि आज चूंकि वहां पर मौजूद हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं इस तमाम तर प्रोसेस को। गिलगित बल्तिस्तान में जैसा कि आपने कहा कि आखिरी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, मगर हमने देखा कि इंतखाबात से पहले ही इलेक्टेबल्स ने अपनी राहें जुदा कर ली और हत्ता के काबीना के अरकान ने भी वफा न किया और हमने देखा कि नून लीग से वो अलग हो गए। और वज़ीर आला की अगर हम बात करें तो हाफिज हफीजुर रहमान समेत पार्टी की दीगर मकामी क़यादत, उनकी क्या सोच है? आया इस इंतखाबात को लेकर जिस तरह से वो सरगर्म दिखाई दिए, वहां पर कामयाबी को लेकर वो कितने पुरुमीद हैं, कितनी कामयाबी उन्हें मिल सकती है आपके नजदीक? देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी जगहों पे जैसे हम देखते हैं ना कि जब 2018 और 2023 के 2013 के और 2018 के इलेक्शन तो इलेक्टेबल्स की सियासत, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स, तो वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई इस दौरान, जब मेरे स्टे के दौरान यहाँ पे 3-4 दिन, वो यही कह रहे थे कि कुछ लोगों के शख्सी वोट है कि मतलब वो जिस तरह अब जब PMLN की गवर्नमेंट थी और जब वो PMLN में थे तो वफाक में भी PMLN की गवर्नमेंट थी, वो इलेक्टेबल्स है, उनको पता है कि उनका बरादरी का वोट है या उनका शख्सी वोट है, उनके वोटर्स पक्के हैं, वो जहां अपना वजन रख देंगे उनके वोटर्स वहां चले जाएंगे। तो यही वजह है कि जब PMLN ये शिकायत करती हुई नजर आई कि जी हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, तो कल मैं एक साहब से पूछ रही थी यहाँ पे, मैं उनका नाम कोट नहीं कहती कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी फिर तो ये PMLN को सोचना चाहिए कि उनको क्या आदमियों की पहचान नहीं है, इतने कच्चे आदमियों को, उनका ये एग्जैक्टली वर्ड था कोट एंड कोट, कि इतने कच्चे लोगों को वो अपने टिकट, पार्टी टिकट दे ही क्यों रहे थे? क्या वो शनाख्ती उनके अंदर नहीं है? तो ये तो उनकी अपनी कमजोरी है। आपको पता है इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स यही होती है, यहाँ पर चाहे वो मेन जनरल इलेक्शंस में हो कि वो देखते हैं कि जो रुझान एक ओवरऑल बन रहा होता है, सही है, वो उसी तरफ बहते चले जाते हैं, उसी तरफ। हाँ, अच्छा, ओवरऑल दादिया मुझे ये बताइएगा कि ट्रेंड्स क्या नजर आ रहे हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ एक सियासत होती है, लोग एक बरादरीज़म की तरफ जाते हैं, इकट्ठे पूरे खानदान जो है वो एक तरफ उनका टिल्ट होता है, तो उसी तरह एग्जैक्टली यही सोच वहाँ पर भी मौजूद है। और अगर हम मुख्तलिफ पार्टीज की बात करते हैं तो 2 किस्म का वोट अब वहाँ पर है, एंटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। जो एंटी गवर्नमेंट वोट है, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जब डिवाइड होगा तो इसका एज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा? 101% एज मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो अभी का नहीं, यहाँ पे उनका बहुत पुराना एक वोट बैंक है, वो भुट्टो के साहब के जमाने का भी है, फिर वो बीबी के जमाने का भी है। सही। लेकिन जो PMLN है ना, उसके बेशक इससे बड़े बड़े जलसे हुए हो, लेकिन लोगों ने उसके नैरेटिव को, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह लें या एंटी फोर्सेस जो नैरेटिव कह लें, उसको लोगों ने यहाँ पर वेलकम नहीं किया है। यहाँ का मिजाज बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ वतन से मोहब्बत करने वाले,
पाक फौज से मोहब्बत करने वाले, जान का नजराना देने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। मैं कितने लोगों से मिली, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वो आई थी, हमने उनको वेलकम किया, लेकिन हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। और बड़ा बाशऊर है यहाँ का वोटर। मुझे बड़ी देख के हैरत हुई, यहाँ के बच्चे, आप बच्चियों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि उनके अंदर कितनी ज्यादा अवेयरनेस है। तो मरियम नवाज के जल से बेशक बड़े हुए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 या मैक्सिमम 3 से 4 सीट वो। अच्छा, उन्होंने दरमियान में सारी गुफ्तगू में कलाबाजी भी तो खाई। वो उन्होंने कहा कि जी हम अपने जो फौजी भाई सियासिन पे हैं उनको सलाम भी पेश करते हैं। उन्हें मालूम था कि यहाँ हर दूसरे चौथे घर का जो एक बंदा है वो फौज में मौजूद है, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट आया होगा या ओवरऑल उनकी स्टेटमेंट अभी नजर आ रही है, फिर रही है अपने बयान से? वो मैं कह रही हूँ ना, नहीं वो देर हो गई, बहुत देर की आते आते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया। आप अब किसी पुलिस स्टेशन पर जाएंगी तो हम आपसे राब्ता करेंगे, वहाँ का सारा माहौल जो है वो आप हमें बता पाएंगी कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पर जो ट्रेंड्स हमें नजर आ रहे हैं और खास तौर पर जो वोटर की हमें सोच नजर आ रही है वो यकीनन हैरान कुन है। जिस तरह से नादिया बता रही हैं कि बहुत बाशऊर वहाँ का जो वोटर है, और जो सारी ओवरऑल सिचुएशन है वो हमें बता रही थी कि वहाँ पर क्या लोगों की सोच नजर आती है, किसके तहत वो वोट कास्ट करते हैं। और इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, जिला गिलगित के हवाले से भी हम इंफॉर्मेशन अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। जैसा कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं जिला गिलगित से मुताल्लिक आप देख सकते हैं कि वोटर्स की तादाद कितनी है, मर्द वोटर्स कितने हैं, कुल वोट कितने हैं, और खवातीन वोटर्स की तादाद आप देख सकते हैं ये बताई जा रही है। और 45% खवातीन वोटर्स हैं और कुल वोटर्स की तादाद यहाँ पर जैसा कि आप मुलाहिजा कर सकते हैं 1,18,459 है। और ठीक इसी तनाजुर में मर्द वोटर्स की अगर बात की जाए तो 65,449 है और 55% ये बनता है कुल वोटर्स का। और इसी तरह से खवातीन वोटर्स की तादाद जैसा कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं 53,010 है। और ये कुल वोटर्स की तादाद का अगर हम इस हवाले से अगर हम देखें तो 45% ये बनता है। और देखना ये है कि आया आज जो इंतखाबी अमल जारी है इसमें वोटर्स आ रहे हैं, खवातीन वोटर्स का रुझान कितना है। और चूंकि जैसा कि हमने आगाज में बात की कि मौसम चूंकि सर्द हो चुका है, और ना ही सर्द मौसम क्या टर्नआउट पर असरअंदाज होगा या नहीं, इस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। और जिला नगर की भी आदाद शुमार हमारे सामने हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। ठीक है, ये जिला नगर के हवाले से अगर नाज़रीन बात करें तो कुल वोट जो हैं वो 37,172 हैं। मर्द वोटर्स की तादाद की अगर बात कर ली जाए तो 20,491 यानी 55% जो है यहाँ पर मर्द वोटर्स की रजिस्ट्रेशन है। खवातीन 16,681 हैं और 45% बनता है। ये जो जिला गिलगित में 45% खवातीन का था और मर्द वोटर्स की जो रेशो थी 55% थी, एग्जैक्टली ये वही है। और खवातीन भी जो है वो बड़ी तादाद में हमें वहाँ पर, चूंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, गिलगित की हम बात कर रहे थे 100% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत एजुकेटेड और बहुत बाशऊर आवाम है वहाँ की, और बहुत सोच समझ कर वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं कि क्या चीज उनके फायदे में जाएगी। और खवातीन की जिस तरह से बड़ी तादाद यहाँ पर रजिस्टर्ड है, एंड आई होप कि उतनी ही खवातीन बाहर निकलेंगी, अपना वोट भी कास्ट करेंगी। बेशक मौसम ठंडा है, बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोग, जिस तरह से नादिया भी बता रही थी कि हमारे यहाँ उमूमन एक ट्रेंड होता है कि लोग देर से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर 8 बजे का टाइम था, लोग उससे पहले ही निकले हुए थे और लंबी लंबी कतारें हमें नजर आ रही थी। बड़े पुरजोश भी हैं लोग। जाहिर है कि उनके मसाइल के हल के लिए अगर एक उनके लिए वाहिद रास्ता उनके पास यही है कि वो हक रायदही का रास्ता इस्तेमाल करें, वो वोट कास्ट करें अपने पसंदीदा किसी भी नुमाइंदे को, चाहे वो आजाद उम्मीदवार है या किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, वो वोट दें। ये सबसे बड़ी शऊर की बात होती है कि अगर आप बाहर निकलकर वोट कास्ट करते हैं कम से कम, तो ये शऊर हमें वहां पर नजर आ रहा है। अभी जब 5 बजे तक सारा सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे सिचुएशन क्या बनती है। लेकिन अली जो बात हम पहले कर रहे थे वो कर नहीं पाए कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत सारे सबूत भी दिए गए हैं जो इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, जितना पैसा वो यहाँ पर बाहर है और अदम इस्तेहकाम चाहता है। खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और AJK को भी पॉइंट आउट किया गया। और आज चूंकि वहाँ पर इलेक्शंस हैं और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो मकामी पुलिस होगी या बाकी चारों जो वहाँ के सूबे हैं वहाँ की जो इलाके की पुलिस है वो वहाँ पर डिप्यूट होगी, लेकिन फौज जो है वहाँ पे नहीं होगी। ये एक बड़ा कंसर्न मुझे ये पर्सनली नजर आ रहा है कि सिक्योरिटी के बहुत खास जो है वो इकदाम जो है वो करने चाहिए होंगे इस हवाले से।
لیکن بڑا ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا، اور دعا ہے ہماری کہ تمام جو عمل ہے یہ بخیر خوبی مکمل ہو جائے۔ جی علی، کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ جی ہاں، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں مقامی صحافی ایمان شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے وقت دیا۔ ریاض سر، جاننا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں آج انتخابات کے حوالے سے جس طرح سے انتظامات کیے گئے ہیں اور جس طرح سے رجحان دیکھا جا رہا ہے، اگر ہم اس سینیریو میں بات کریں تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں آج؟ سب سے پہلے ووٹرز کے رجحان کی ہم بات کر لیتے ہیں، ووٹرز کا رجحان کس طرح سے دکھائی دے رہا ہے اور آگے کیا صورتحال آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، گلگت بلتستان میں الیکشن کا جو مرحلہ ہے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، پولنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور خوشائن بات یہ ہے میں تقریباً گلگت شہر میں موجود ہوں، کئی پولنگ اسٹیشن کا میں نے دورہ کیا، ہلکی بارش ہوئی گلگت میں، اور باقی جو گلگت بلتستان کے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ برف باری کی اطلاعات ہیں، اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن پہ موجود تھی، اور یہ اس میں ایک اور اچھی بات مجھے یہ نظر آئی، پولنگ کے آغاز سے پہلے ہی لوگ قطار بنا کے بڑے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا وہ لائن میں کھڑے تھے، اور ان میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد تھی، اور مجھے ایک بزرگ سے بھی ملاقات کا موقع ملا جن کی عمر 90 سال تھی، وہ تقریباً بیمار بھی تھے، اور لیکن وہ 2-3 بندے ان کے جو رشتہ دار تھے وہ اس کو لے کے آئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اس عمر میں ووٹ کاسٹ کرنے آئے، تو انہوں نے کہا جی بس وہ امید ہے، مسائل ہے، بجلی کے مسائل ہے، پانی کے مسائل ہے، سڑکیں، انفراسٹرکچر، صحت، کہتے ہیں کہ جی ابھی اس عمر میں ووٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میری جو اگلی جنریشن ان کو یہ مسائل کا سامنا نہ کر پائے۔ بڑی زبردست اس نے باتیں کی۔ اور جی جی آپ اپنی بات جاری رکھیے گا، ہم اس وقت یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ایک بزرگ ہیں جو باہر تشریف لائے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ میں اپنی اگلی جنریشن کے لیے میں ووٹ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے پسند کے نمائندوں کو سامنے لے کر آئیں اور یہاں پر کچھ کام ہو سکے۔ جی وہ مجھے بہت اچھی لگی اس کی، اس سردی کے موسم میں وہ باہر نکلے تھے۔ وہ لوگوں کی سوچ یہاں پہ میرے خیال میں لوگوں، اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ نومبر سے لے کے مارچ تک گلگت بلتستان کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہتے ہیں۔ شدید سردی کے دوران یہاں پہ نہ تو گیس ہے، اور گلگت ہیڈ کوارٹرز میں اس وقت 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب گزشتہ 70 سالوں سے لوگ اپنے منتخب نمائندوں کو، یا جو بھی نظام پہلے پرانے کچھ اور نظام تھے، بی ڈی سسٹم تھا 1970 میں، یہاں پہ ایک مشاورتی کاؤنسل تھی، اس کے بعد 1974 میں بھٹو کے دور میں ناردرن ایریاز کاؤنسل بنی، 1994 میں پہلی مرتبہ یہاں پہ ایل ایف او کے تحت لیگل فریم ورک آرڈر آیا، بینظیر کی حکومت تھی مرکز میں، پیپلز پارٹی نے اس کی پہلی مرتبہ جو ہے نا پارٹی بیس الیکشن ہوئے۔ 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ ایک سیلف امپاورمنٹ آرڈر، گورنر اور وزراء کے عہدے دیے گئے، ناردرن ایئر کا نام تبدیل ہوا، گلگت بلتستان کا نام رکھ دیا۔ یہ سلسلہ ابھی پھر اسی طرح سے یہی پی ٹی آئی کی حکومت نے، پرائم منسٹر نے وزٹ کیا نومبر کو، انہوں نے عبوری آئینی صوبے کا اعلان کیا، اس کی ایک اور پیش رفت ہو گئی ہے۔ اس کا مجھے بتائیے گا ایمان صاحب، اس کا بتائیے گا کہ کیسے وہاں کی عوام پرسیو کر رہی ہے اس اعلان کو، اب ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، کیا سمجھتے ہیں وہ کہ ان کو اگر یہ ہو جاتا ہے پراپرلی، اس کے اوپر جو باقی اس کی ٹیکنیکلی ظاہر ہے کہ آگے مزید اس پر کام ہوگا، تو کس حد تک ان کو فائدہ ہو پائے گا اس سے؟ دیکھیں میں کلوزلی گلگت بلتستان کے الیکشنز جو 1994 میں پہلی مرتبہ ہوئے تھے، ایز اے جرنلسٹ میں ان کو مانیٹر بھی کرتا رہا ہوں، کور بھی کرتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس دفعہ بھی جو عبوری آئینی صوبے کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے، یہاں پہ 1 نومبر یوم آزادی گلگت بلتستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن تھا، یہاں پہ ڈوگرا تھے، اس کے بعد پھر گلگت بلتستان کے لوگوں نے ظاہر ہے اسلام کے نام پہ پاکستان بنا تھا، تو ڈوگراز کو یہاں پہ اپنی مدد کے تحت نکالا، پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بن گیا باضابطہ طور پر۔ تو جو یہاں پہ اوور آل جو لوگوں نے پرائم منسٹر 1 نومبر کو آئے تھے، اسی دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ یوم آزادی جو یہاں کی ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، اور اسی موقع پہ انہوں نے گلگت بلتستان کو آئینی عبوری صوبے کا اعلان کیا۔ میں نے کافی لوگوں سے بات کی، میں گزشتہ 10-15 دنوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں سے، مذہبی پارٹیوں سے، اور یہاں کی جو لوکل کچھ پارٹیز ہیں ان سے بھی میری ملاقاتیں ہوئی بہت ڈیٹیلز میں۔
यहाँ पे जो आम आदमी का जो इशू है वो अगेन यही आ रहा है कि जी वो बेसिक इश्यूज इनके हैं, पानी, बिजली, सेहत, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मसाइल आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जो अबूरी आईनी सूबे का प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है। उसके लिए बेसिकली तरीकाकार ये होगा कि ये जो जीबी असेंबली के लिए इलेक्शन आज हो रहे हैं, ये असेंबली करारदाद 2/3 अक्सर से मंजूर करेगी। उसके बाद सूबा बनाने के हवाले से उसके बाद पाकिस्तान की सेनेट और कौमी असेंबली में बिल्स पेश किए जाएंगे। वहां पे 2/3 अक्सरियत के साथ अगर मंजूरी होती है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का आईनी अबूरी सूबा बन जाएगा और ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। जो लोगों का गुज़िश्ता 74 सालों से एक डिमांड है वो ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में जो वोट पड़ेगा वो इस उम्मीद के साथ कि जो भी हुकूमत आएगी वो लोगों के जो बुनियादी मसाइल है सरेदस्त उनको हल कर ले। ठीक है ईमान शाह साहब, हम आपसे वक्तन फवक्तन पूरा दिन जो वहाँ पर पेशरफ्त हो रही है, जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, आपसे जरूर उसके बारे में अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। और नाज़रीन, ओवरऑल जो ट्रेंड्स हमें वहाँ पर नजर आ रहे हैं उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं आम आदमी के मसाइल क्या हैं, उसके हवाले से भी बात हो रही है। और गवर्नमेंट इस वक्त किस तरह से जो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है आईनी अबूरी सूबे की, लोग वहाँ के अवाम उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, इसके हवाले से भी हम वहाँ लोगों की क्या ओपिनियन है वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं। और सिक्योरिटी के जो इंतजाम किए गए हैं आज के दिन के हवाले से वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन उसके साथ साथ कोविड-19 के हवाले से जो सारे एसओपीज हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है। मैं कुछ विजुअल्स देख रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है। शायद अंदर जहाँ पे वोट कास्ट किया जा रहा है वहां उसको फॉलो किया जा रहा होगा, लेकिन बाहर बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे। इस हवाले से मजीद हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा रहा है, जिला इंतजामिया किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करवाती है। जी अली, पोलिंग स्टेशन के अंदर ये इंतजाम किए गए हैं जिसका तस्करा आप कर रही थी। 6 फीट का फासला रखा जा रहा है और वोटर्स के दरमियान उस फासले को बरकरार रखा जा रहा है ताकि जो कोरोना के एसओपीज डिफाइन किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसी को फॉलो किया जा रहा है। और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम इससे पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। और पोलिंग का अमल इस वक्त चूंकि जारी है, हम इस मुतालिक अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे वहाँ की क्या सूरत हाल है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो ताज़ा तरीन सूरत हाल अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे हमारे